Let us start. So this is the second session in which we are covering quant questions related to Snap. Some of these are past paper questions. Some of these questions I've created. This is one of the questions we discussed yesterday. I was not very happy with the solution. I want you guys to try this one more time. Give it a shot. Give it a try. I'll show you a slightly better approach, slightly better method to answer this question. Mr. Thomas is investing amount of 13,900 rupees in two schemes, Scheme A and Scheme B. One of them offers 14%, other one offers 11% interest. The total simple interest earned in 2 years was this much. What was the amount invested in Scheme B? अपने को B का पैसा चाहिए. So the thought process I applied here is, if you earn 3508 rupees in 2 years, you are earning 1754 rupees in a year. This is 1 year simple interest. Now see, 11% here and 11 and 14% here. Whether it is scheme B or scheme A, in both of the schemes, if the amounts are A and B, you are definitely earning 11% on both. Plus you are earning 3% extra on A. This is equal to 1754. What is A plus B? This amount. The percentage symbol and 00 can be cancelled. 11 into 139 plus 3% of A. 3% of A is equal to 1754. How do we multiply 11? 9 as it is, addition 12, addition 4 plus 1 5, then 1 as it is, plus 3% of A is equal to 1754. अब दो से में आपका आंसर आ जाएगा. This is 14 minus 9, 5. This is 4 minus 2, 2. This is 17 minus 15, 2. So 3% of A is equal to this. So if I cancel percentage, if I cancel 1%, this is 75. So 100% of A is 7500. So B must be 6400. A proper solution. Earlier I had shown you a trick in which I had worked with zeros. सब में दो zero है. If a number has two zeros in it and you calculate a percentage, तो zero और percentage cancel हो जाता है. तो मैंने आपको unit digit से आंसर दिया था. Unit digit से. I felt सारे ऑप्शन चेक करने पड़े, took time. तो ये बेटर और फास्टर तरीका यू सी. आपको 11% कमाई तो है ही है. यू टेक ए और बी, 11% तो है ही है. 11% ऑफ टोटल प्लस 3% ऑफ बी इज इक्वल टू दिस. वहां से यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड सॉल्व इट. Let me know if this approach is clear to you. All right. Chalo, moving on. Try. You have to maintain speed. You can see similar kind of question in NMAT as well.
six different sweet varieties of count 28, 189, 119, 77, 161, 112 were ordered for a particular occasion. They needed them to be packed in such a way that each box contains same variety of sweets and the number of sweets in each box is also same. You are going to create boxes of same size. The size is same. Size means number of sweets is same. If this is variety A, the box will contain only A. You cannot mix them. The boxes are packed in such a manner, the box contains same variety of sweets and the number of sweets is also same. So whenever you are dividing things in same size, same numbers, it is always HCF. If I increase more and more quantity in a box, I will need less number of boxes. Question says what is the minimum number of boxes required? So basically you're looking for the HCF, highest common factor. ये number 2 का और 7 का multiple है. It's an even number. This number, this number, this number, this number, they are all odd. तो अगर कोई HCF है तो वो 7 है. If there is a HCF, it must be 7. Otherwise कोई HCF हो नहीं सकता. एक बार आप notice कर लो. You notice 189, 77, 119, 161, they're all multiples of 7. So 7 is the number of sweets. इतने sweets हैं. So how many boxes will you need for this? 4 boxes. How many boxes will you need for this? 2 times 14 carried over 4, 27 boxes. This is 7 into 17, 17 boxes, 11 boxes, 23 boxes, and finally 16 boxes. ये आपके number of boxes हैं. तो जो भी आपको 0 देता है उसको पहले use करो. This is 20, 20 and this is 50 which is 70. 70 plus 28 is 98 boxes are required. Whenever you have to create same size or same number or you have to divide by same number, it is leaning towards HCF. आप जितना बड़ा नंबर लोगे उतने बॉक्सेस कम होंगे because quantity that is this into number of boxes is equal to total. आप क्वांटिटी ज्यादा करोगे बॉक्सेस कम लगेंगे. कॉमन सी बात है. आप हर किसी में HCF के बराबर स्वीट्स पैक करोगे. कभी भी अलग अलग वैल्यू को डिवाइड करना पड़ रहा है सेम नंबर से, थिंक अबाउट HCF. ट्राई दिस.
जैसे आपने ये पहले के 3 लाइन्स पढ़े, यू अंडरस्टैंड इट इज अ रेसेस का सवाल, लीनियर रेसेस. In a 1000-meter race, Aman gives 100-meter head start to Bipin. उसको 100 मीटर आगे से शुरू करने दिया and beats him by 200 meters in the same race. Aman also gives 100-meter head start to Cyrus and beats him by 300 meters. In how many meters would Bipin beat Cyrus in a 200-meter race? तो बेसिकली जब अमन ने 1000 मीटर कवर किए तो 100 मीटर का स्टार्ट मिला बिपिन को और 200 मीटर से हार गया. सो बिपिन ने 700 मीटर कवर किए. जब अमन ने 1000 किए, बिपिन ने 700 किए. इन द सेम रेस जब अमन ने फिर से 1000 किए, देखो अमन ऑफर्ड 100 मीटर्स टू साइरस और 300 मीटर से हरा दिया. तो साइरस ने 100 मीटर कम किए और 300 मीटर कम किए, तो साइरस ने 600 मीटर्स किए. इससे आपको पता पड़ गया जितने टाइम में बिपिन ने 700 किए तो उतने टाइम में साइरस ने 600 किए. तो ये 7 मीटर्स करेंगे तो ये 6 करेंगे, तो 1 मीटर का डिफीट है. 1 मीटर का डिफीट. अब क्या करना है आपको? 200 मीटर का रेस करना है आपको. इसको 200 कंप्लीट करना है, इसको 200 कंप्लीट करना है. तो दिस नंबर विल बिकम 200/7. ये पूरा कॉन्सेप्ट रेशियोज का है. वी आर अप्लाइंग इट टू रेसेस. देखो द गैप विल ऑलवेज बी मेंटेन. जब जब बी 7 मीटर्स करेगा, सी 6 मीटर्स करेगा, 1 मीटर का गैप बनेगा. अब मुझे इसको 7 मीटर्स नहीं 200 मीटर्स कराना है, तो आप केवल गैप पे ध्यान दो, सी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर ये 1 बन जाए तो गैप बिकम्स 1/7. ये 200 बन जाए, गैप बिकम्स 200/7. तो 100/7 तो आपको परसेंटेज में सिखाते हैं 14.28. तो 200 क्या हो जाएगा? 28.56. So you see, to explain I have to write the first part, I have to go into all of this. Otherwise यहां से आपका आंसर आ गया. ए का यहाँ कोई रोल नहीं है. जितनी देर में डी ने 700 मीटर्स किए, सी ने 600 मीटर्स किए, तो डिस्टेंस रेशियो इज 6 and 7 फॉर डी एंड सी. 1 मीटर का गैप है. तो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट जब ये 200 मीटर भागेगा तो गैप विल बी 200/7. और ये परसेंटेज में आपको सिखाते हैं हम 100/1, 100/2, 100/3. ये सारी थियोरी आपने परसेंटेज में कर रखी है. तो यूजिंग दैट नॉलेज 100/7 is 14.28, double is 28.56. Is the solution clear to everyone? Take a minute if you want to write this down. Recording I will share over the Telegram group. I will share the link in the WhatsApp group. Try. So you would have understood by now. It's a question based upon solids or three-dimensional geometry. There's a huge rectangular water tank of dimensions 150/100 meter base. Water is filled using a pipe having cross-sectional dimension of
2 dm and 1.5 dm. What is dm? Decimeter. 1 decimeter is equal to 10 centimeter, or 1 decimeter is equal to 0.1 meter. You need to know these things. ये पता होना चाहिए आपको. The water flows at a speed of 15 kilometers per hour from the pipe. How many hours will it take? Will the water in the tank be 3 meters filled if measured from the base? तो पहले आपको ये समझना है कि there is a rectangular base 150 मीटर by 100 मीटर. आप इसमें 3 मीटर की हाइट तक पानी भरना चाहते हो, तो व्हाट इज द वॉल्यूम? 3 इंटू 150 इंटू 100, ये मीटर्स में है. अब एक छोटा सा पाइप अटैच्ड है. पाइप जो है वो भी रेक्टेंगुलर पाइप है. अब पाइप में से जितना पानी बहेगा वही तो फिल होगा ना. पाइप का एरिया जो है दैट इज व्हाट? 20 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, दिस इज 0.0. ये आपका 0.3 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है. अब आप क्या कर रहे हो? किलोमीटर पर आवर में आपकी यहाँ पर स्पीड है. हाउ डू यू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर? क्योंकि देखो आंसर तो आपका आवर्स में ही है. तो व्हाट आई विल डू इज 15 किलो मीटर्स, किलोमीटर्स. तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया. आपको 1 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पानी. तो आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे? ऐसा आप इमेजिन करो, द वाटर फ्लो विल आल्सो बी रेक्टेंगुलर. So area of the pipe into the speed of the water, 0.3 into 15,000 into number of hours is equal to this. तो देखो बहुत ब्यूटीफुली वैल्यूज अरेंज्ड हैं. यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कट गए, ये 0 50 का यहाँ कट के 3 बन जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 15 45. ये हो जाएगा 3 इंटू 15 45. ये एक 0 बच गया. तो T is equal to 10 hours. In 10 hours you will be able to fill the whole tank. आपको एक ही डाउट आ रहा होगा, सर हाउ डू यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो? सी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो पानी भी रेक्टेंगल के फॉर्म बाहर आएगा. तो आपको बेसिकली लेंथ को मल्टीप्लाई करना है एरिया से, सो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा. तो इसका एरिया है 0.3 मीटर स्क्वायर. ये पानी का फ्लो रेट है फॉर एवरी आवर 15,000 मीटर्स पर आवर. तो ये जो लेफ्ट साइड पे है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, और ये क्या है? यहाँ पर टोटल वॉल्यूम फिल्ड. तो दिस इनटू टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम कर दो. 10 आवर्स में आपका 3 मीटर का हाइट फिल हो जाएगा. द ओनली इशू हियर इज डेसीमीटर आपको पता होना चाहिए. डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर. Take your time, understand all this, copy this down. This is again NMAT and SNAP level both. CET के हिसाब थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा. CET में से क्वेश्चन आते नहीं है. CET is a localized exam for state of Maharashtra. MHCET. Moving on. Try. जितना ज्यादा लॉजिकली आप सोचोगे ना, उतना जल्दी आपका आंसर आएगा.
नो आंसर्स, व्हाई? सुनो, हैबिट डालनी है. यू नीड टू फोकस और पुट अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, पेन हो, पेंसिल हो, आपकी उंगली हो, एंड रीड थॉरोली. The average earning of each member of Chawla family is 25% less than average earning of each member of Patil family. The total earning of Chawla family is 20% more than total earning of Patil family. The number of members of Patil family is what percentage of number of members of Chawla family. तो मैं आपको ना मिनिमम से मिनिमम स्टेप में आपको करना सिखाता हूँ. मुझे क्या चाहिए? पाटिल के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और चावला के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इनटू 100, ये नंबर ऑफ मेंबर्स हैं. अब अगर कोई चीज 25% लेस होती है, 25% इज 1/4, तो अब चावलास का जो एवरेज है वो 3 ले लोगे. ये चावलास का एवरेज है, ये पाटिल्स का एवरेज है. पाटिल का एवरेज इंटू नंबर ऑफ मेंबर्स, चावला का एवरेज इंटू नंबर ऑफ मेंबर्स, ये टोटल अर्निंग है. लेकिन चावला फैमिली की अर्निंग क्या है? 20% ज्यादा है. हाउ डू यू राइट 20% मोर? 20% मोर लिखा जाता है 6/5. चावलास की अर्निंग 20% ज्यादा है पाटिल की टोटल अर्निंग से. व्हाट इज सी एंड पी? नंबर ऑफ मेंबर्स. व्हाट इज 4 एंड व्हाट इज 3? एवरेज अर्निंग. आपको चाहिए P अपॉन C, तो इधर आ जाएगा, बाकी इधर भेज दो, ये ऊपर चला जाएगा. 15/24 इज इक्वल टू P/C इंटू 100. तो दो स्टेप में आपका आंसर आ गया. 3 से कैंसिल 5, 3 से कैंसिल 8. 1 अपॉन 8 होता है 12.5, 1 अपॉन 8 12.5, 5 अपॉन 8 62.5. तो दो स्टेप का क्वेश्चन है ये. फालतू के लोग 10-10 स्टेप लगाते हैं अपने अपने क्लासेस में. अटेंड रेगुलर लेक्चर्स क्यों लगाते हो 10 स्टेप? दो स्टेप का क्वेश्चन है. यू हैव टू इक्वेट टोटल, यू हैव टू इक्वेट टोटल, टोटल अर्निंग, एवरेज अर्निंग का लिंक दिया हुआ है. 4 और 3 क्यों लिया? कभी भी आपको 25% कम करना है, ज्यादा करना है, अज्यूम द बेस एज 4. पाटिल फैमिली का 4 रुपए का अर्निंग है एवरेज, चावला फैमिली का 3 रुपीज का है. व्हाट इज सी? नंबर ऑफ मेंबर्स. एवरेज इंटू नंबर टोटल, एवरेज इंटू नंबर टोटल. तो पाटिल फैमिली का जो टोटल है उसको जब 20% बढ़ाओगे तो चावला फैमिली का आएगा. टोटल अर्निंग ऑफ चावला फैमिली इज 20% मोर देन दैट ऑफ पाटिल फैमिली. बता रहा हूँ ये क्वेश्चन 30-30 और 50-50 सेकेंड्स में बनेंगे इफ यू थिंक लाइक दिस. अब आपके मन में होगा सर 100 रुपए लेके बना सकते हैं. कर सकते हो बिल्कुल. 100 रुपए इज अ मैनेजेबल वैल्यू. पाटिल फैमिली के आपने 100 रुपए पर पर्सन मान ली, चावला फैमिली की 75 रुपीज. इसमें मेंबर सी है, इसमें मेंबर पी है. अब इसको 20% बढ़ाना है, 20% ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे सॉल्व करो. क्या बड़ी बात है ये? ट्राई. There are
360 sweets in a box distributed among A, B, C. If the ratio of number of sweets distributed among A and C is 11, 12 and 11, the number of sweets distributed to B is is 8.33% more than A. अब बेटा 8.33% होता क्या है, 1/12 होता है, तो 12 के ऊपर एक एक्स्ट्रा, ध्यान सुनो, ए का 12 है, बी का 13 है, सी का 11 है, तो 12 पे एक ज्यादा। ये पढ़ते पढ़ते आप यहां तक लिख लो। अब पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। देखो बी एंड सी में 2 का डिफरेंस है, इन सब का टोटल कितना है, 25 प्लस 11 टोटल 36 है। तो 36 को कन्वर्ट करना है 360 में, इंटू 10 कर दो, तो डिफरेंस भी कितना होगा, इंटू 10। You are solving a past question or past question from Snap. This is a past QA from Snap. तो दो स्टेप के क्वेश्चंस हैं। ऑल यू हैव टू डू इज 8.33% कैसे इंक्रीमेंट करें, 12 के ऊपर 1 मोर, तो ये 12 के ऊपर 1 एक्स्ट्रा 13, A 12, B 13, C 11। क्वेश्चन है बी और सी में गैप, बी और सी में गैप 2 का है, लीव इट देयर। इनका टोटल 36 है, रियलिटी में टोटल 360 है। दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। Is the solution clear to everyone? Confirmation on this? Try. Total number of students in class B is 25% less than A. The ratio of number of boys in the class is 5/4. If the number of girls in class A and class B are 60 and 40 respectively, find the total number of students in class A. I can create equations, you can create equations, or you can apply common sense and logic. When you say 25% less, you are saying 4 and 3. 4 and 3. So I'm starting with, I can use 4 and I can use 100. I can say A में 100 बच्चे तो B में 75. Actual students are this and this. अब इसमें से आपने लड़कियां माइनस कर दी, 100x minus 60 upon 75x minus 40, लड़कियां माइनस कर दी। The ratio of boys is 5/4. कभी भी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व मत किए करो, सेम वेरिएबल है, ऊपर से माइनस कर दो। दैट कंपोनेंट डिविडेंड अप्रोच, ऊपर माइनस होगा तो ये बन जाएगा -20, ये बन जाएगा 25x, ये ऊपर बन जाएगा 1 अपॉन 75x minus 40 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो, ये हो जाएगा 100x minus 80 is equal to 75x minus 40। इसको तो शिफ्ट कर दो, 25x is equal to 40।
आपका काम ए के लोग निकालना है, तो इसको 100 में, क्योंकि आपने 100 एज्यूम किया था, 100 में कैसे कन्वर्ट करोगे? 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स, तो ए में कितने स्टूडेंट्स हैं? 160। ए में 160 स्टूडेंट्स हैं। फोकस ऑन द assumption पार्ट। आई कुड हैव टेकन 4x एंड 3x, आंसर यही आएगा। इनफैक्ट 4x और 3x छोटे नंबर्स हैं, मैनिपुलेट करना आसान है। आई एम अज्यूमिंग टोटल स्टूडेंट्स आर 4x एंड 3x। लड़कियां माइनस हो गई। नाउ द रेशियो इज 5/4। तो कंपोनेंट डिविडेंड यहां भी लगा दो, माइनस कर दो ऊपर से, तो ऊपर बन जाएगा x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 40 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 3x माइनस 40, x इज इक्वल टू 40। आपको कितने चाहिए? 4x चाहिए। 4x इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ए। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट आई हैड अ फीलिंग अगर चौथा ऑप्शन होगा तो 3 अटेम्प्ट वेस्ट होंगे। ऑप्शन से कैसे कर सकते? लेट मी गिव इट अ शॉर्ट फॉर यू। ये अगर ए की स्ट्रेंथ है, इसका 1/4 होता है 45, तो ए में 180 स्टूडेंट्स हैं, तो बी में 135 है। आपने उसमें से लड़के माइनस कर दिए, तो इज द रेशो 5/4? लड़कियां माइनस कर दी, 5/4? नो। इसका 1/4 कितना होता है? 3 टाइम्स 12, 35। 35 माइनस कर दो, 140, 105। ये टोटल स्ट्रेंथ है ए और बी की। आपने लड़कियां माइनस कर दी, 80, 40। इज द रेशियो 5/4? नो। ये आपने ए की स्ट्रेंथ मानी 120, इसका 25% होता है 1/4, 30, दैट इज 90। उसमें से लड़कियां माइनस कर दो। इज द रेशियो 5/4? नो, ये तो 6/5 है, तो ओनली आंसर पॉसिबल इज डी, 160। 1/4 इज 40, तो 120 यहां पर स्टूडेंट्स होंगे। 60 माइनस कर दो, 40 माइनस कर दो, तो 100/80। इज दैट 5/4? यस, दैट इज यूजिंग ऑप्शंस। पहला वाला वाज assuming numbers, assuming ratio values, 4x and 3x. Before CAT also, around mid of November when I was conducting advanced sessions, यही मेथड कवर हो रहे थे वहां पर भी, बट लेवल काफी हायर था, वो कैट क्वेश्चंस थे। ट्राई दिस।
Answers, comment answers. The ratio of incomes of A and B is 6/5. The ratio of savings of A and B is 3/1. If the expenditure of A and B is 12,000 and 16,000 respectively, find the difference between income of A and B. तो आपको एक रूल सिखाया जाता है, अगर कोई दो अलग अलग रेशोज होते हैं, you cannot subtract these terms and form a new ratio. ये रूल 100% वैलिड है. यहां थोड़ा ध्यान देना. What is the ratio of this? एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है? एक्सपेंडिचर का रेशो 3/4 है. ये 4,000 इंटू 3, 4,000 इंटू 4, 3/4. इनकम का रेशो 6/5 है, सेविंग का रेशो 3/1 है और एक्सपेंडिचर का रेशो 3/4 है. ध्यान सुनना. Is the difference of these two numbers matching with this? Is the difference of these two numbers matching with this? Yes. इसका मतलब है बेटा आप इन दोनों को माइनस करके ये रेशो बना सकते हो. अभी इनकी इनकम में डिफरेंस कितना है? 1 का. मेरे हिसाब से जो 3 है वो 12,000 के बराबर है, तो जो 1 होगा इट विल बी इक्वल टू 4,000. तो इनकी इनकम का डिफरेंस 4,000 रुपीज है. आम जिंदगी में आप कैसा बनाओगे? ए का इनकम 6x, बी का इनकम 5x, ए का सेविंग 3y, बी का सेविंग y. अब इसको इक्वेट करके आप सॉल्व करोगे. नथिंग रॉन्ग विद दिस. इस मेथड में कुछ भी गलत नहीं है. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस. बट लंबा मेथड है, टाइम लेगा. यू कैन थिंक रिवर्स, क्योंकि रेशोज का डिफरेंस मैच कर रहा है. आपको गिवन है, ये डिफरेंस गिवन है आपको एज अ रेशो. यहाँ पे आई कैन डायरेक्टली कन्वर्ट रेशोज इनटू रेशोज. ये 6 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है, तो डिफरेंस 3/4 मैच हो गया. 3/4 हो भी रहा है यहाँ पे. तो मुझे पता करना है 6 और 5 का डिफरेंस 1 किसके बराबर है. 3 is equal to 12,000, so 1 is equal to 4,000. ये आपका आंसर है. अभी आपका काम है इन सबको सॉल्व करना. इन सबको सॉल्व करके x निकालना आपका काम है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. That is the difference between the two individuals. Try. A 175-meter long train crosses another train of length 100 meter in 15 seconds, running in same direction. If the speed of the first train is this, what is the speed of second train? जो पहली ट्रेन है सेकंड वाले को क्रॉस कर रही है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, लेंथ हमेशा प्लस होती है. तो
275 मीटर क्रॉस हो गए 15 सेकेंड में, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। दिस इज इक्वल टू 90 माइनस दूसरे वाले की स्पीड, क्योंकि ये kmph है, तो 5/18। बस ये सॉल्व करने कह रहे हैं आपसे, 3 स्टेप में बन जाएगा। ये 5 से कैंसिल 3 टाइम्स, 5 से कैंसिल 25, 55 टाइम्स कैंसिल्ड, 11 times cancelled 6 times, 66 is equal to 90 minus x is equal to 24। ये जल्दी कैसे किया आपने? whenever there are multiple objects जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो लेंथ हमेशा ऐड होती है, लेंथ इज ऑलवेज एडेड। डिनोमिनेटर में क्या होती है? स्पीड रिलेटिव, उससे टाइम मिल जाता है। उल्टा इस केस में क्या है? टाइम गिवन है, 15 सेकेंड में क्रॉसओवर हो गया, तो टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? स्पीड रिलेटिव। और स्पीड रिलेटिव क्या है? डायरेक्शन सेम है तो माइनस करेंगे। kmph है, मीटर पर सेकंड कर दो। मीटर पर सेकंड कैसे करेंगे? 5/18 लगा दिया तो kmph से मीटर पर सेकंड हो गया। 18/5 लगा दोगे, इट विल बिकम kmph। स्ट्रेट फॉरवर्ड, दो स्टेप के, तीन स्टेप के सवाल हैं ये। These are actual snap questions। आधा काम आप वर्बली कर सकते हो इसमें, और 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर मीन्स 4 गुना एक साइड का, तो ये 4 गुना है, तो एक साइड हो जाएगा 56, एरिया हो जाएगा 56 स्क्वायर, तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ दिस। तो आपको इसका आंसर ढूंढना है। तो ये कैंसिल 28, आखिरी में क्या आएगा? 8 आएगा, आखिरी में 8 आएगा। और खेल दो, क्या खेल रहे हैं? सेम डिजिट्स को इन्होंने आगे पीछे किया हुआ है, ताकि डिजिट सम ना लगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था डिजिट सम, दैट आई कैन नॉट अप्लाई, दैट यू कैन नॉट अप्लाई। क्यों? क्योंकि सबके आखिरी में 8 आ ही रहा है और डिजिट भी सेम है, 1658 1568। आंसर इसमें और इसमें से आएगा एक आंसर 1558। तो ऐसा करो, मल्टीप्लाई कर ही दो, वो तो आपको आता ही है। दिस इज 28 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर ही दो। नेक्स्ट वन। ये एक्चुअल क्वेश्चंस है, दीज आर एक्चुअल क्वेश्चंस, पास्ट ईयर एक्चुअल क्वेश्चंस। 5 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है 3 चेयर में फॉर फोटोग्राफ। उसमें से 3 लड़कियां हैं, बाकी 2 लड़के हैं। इन हाउ मेनी वेज आर द 3 गर्ल्स टुगेदर? तो गर्ल 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 साथ में है, बॉय और बॉय अलग हैं, तो ऐसे गिनते हैं। 3 चीजें अरेंज होंगी 3 फैक्टोरियल। लड़कियां आपस में अरेंज होंगी 3 फैक्टोरियल, 6 into 6 36। 10 क्वेश्चन, 10 सेकेंड क्वेश्चन है ये। 5 लोगों को अरेंज करना है, गर्ल 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 बॉय बॉय, गर्ल्स मस्ट बी टुगेदर। इनको 1 काउंट किया, 2 3, तो इनका अरेंजमेंट आ गया 3 फैक्टोरियल। व्हाट इज दिस 3 फैक्टोरियल? ये लड़कियां आपस में अरेंज होंगी, तो 3 फैक्टोरियल 6, 3 फैक्टोरियल 6 36।
कभी भी आप दो चीजें सेलेक्ट करते हो, जैसे मान लो आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से दो सेलेक्ट करते हो, तो उसे इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे। अब देखो, मैं आपको इक्वेशन बना के सॉल्व कर दे सकता हूँ, लॉजिक से आपको आंसर दे सकता हूँ। आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है? 33। 33 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल तब बनेगा जब ये 12 हो, बाजू वाला 11 हो, या फिर ये 11 हो, बाजू में 10 हो। लेकिन अगर बाजू में 10 होता तो ऊपर का 5 कैंसिल हो जाता। तो आपके पास 12 बॉल्स होने चाहिए। 3 प्लस 4 प्लस x प्लस 1 शुड बी 12। ये 7 है, दिस मस्ट बी 5, x मस्ट बी 4। अब ये क्या जादू टोना कर रहे हैं? आपके सामने क्वेश्चन यही है ना कि रेड कलर के 3 बॉल हैं, येलो कलर के 4 बॉल हैं, और x प्लस 1 बॉल्स हैं ग्रीन कलर के। तो कितनी वैल्यू है x की अगर ग्रीन के 2 बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/33 है? 5/33। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे n, आप डिनोमिनेटर में nc2 निकालोगे और ऊपर क्या निकालोगे? जितने ग्रीन बॉल है कॉम्बिनेशन 2। ऊपर 5 का मल्टीपल चाहिए और नीचे 11 का मल्टीपल चाहिए ना आपको। 11 का मल्टीपल कहां से आएगा? या तो n इज इक्वल टू 12, n माइनस 1 इज इक्वल टू 11। अब आप चेक कर लो, अगर आपको चाहिए तो यू कैन चेक दीज थिंग्स। आपको इनमें अगर डाउट है, सर एक बार चेक करा दो। देखो, हमने इसको x को 4 लिया, तो 5 बॉल है ग्रीन कलर की, 5c2 इज 10। टोटल बॉल 12 है, 12c2 इज 12 इंटू 11 अपॉन 2। कैंसल कैंसल 6, कैंसल 3, कैंसल 5। आया कि नहीं आया 5/33? तो ये टिप्स और ट्रिक्स हैं that will help you in cracking exam faster. Try this. क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप कह रहे हो अगर मशीन सी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 4 घंटे में टास्क हो जाएगा, 6 घंटे में। तो 6 घंटे में ए और बी तो काम कंप्लीट कर रहे हैं ना। फिर आगे लाइन में सेम बात कर रहा है, इफ ओनली मशीन्स ए एंड बी आर यूज्ड द टास्क इज कंप्लीटेड इन 9 आवर्स। तो यहाँ पर ये डाटा और ये डाटा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है। अगर तीनों मशीन्स काम करेंगे साथ में, 4 घंटे में काम हो जाता है। अगर सी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए एंड बी को करेंगे, तो 6 घंटे में जाता है। फिर आगे कह दिया अगर केवल ए और बी को इस्तेमाल करेंगे तो 9 घंटे में हो जाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर गया। ये यहाँ फ्रेमिंग का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्रेमिंग का इशू है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ऑप्शंस याद नहीं थे पर्सन को, whoever appeared the exam।
कमेंट आंसर्स। किसी ने 25% मार्कअप कर दिया, 15% डिस्काउंट दे दिया और सोल्ड कर दिया 850 रुपीज में। कॉस्ट प्राइस में मार्कअप लगेगा और मार्कअप में डिस्काउंट लगेगा और आपने 850 में बेच दिया। तो 2 स्टेप का क्वेश्चन है। कैंसल्ड कैंसल्ड 10, ये होगा 25 इंटू 5, ये होगा 25 इंटू 4, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 100। कॉस्ट प्राइस इज $800। 2 स्टेप का सवाल। व्हाट डू यू डू इज, आप मार्कअप किस में लगाते हो, यू अप्लाई मार्कअप ऑन द कॉस्ट प्राइस। सो सीपी इंटू मार्कअप, मार्कअप कितना है 25% का, मार्क्ड अबव द कॉस्ट प्राइस 125 सोल्ड एट डिस्काउंट 25, तो मार्कअप होने के बाद डिस्काउंट देते हैं 15% का, ये सेलिंग प्राइस है। तो आपने कॉस्ट प्राइस इंटू मार्कअप कर दिया इंटू डिस्काउंट कर दिया इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आ गया, प्रॉफिट और डिस्काउंट। A trader marks up the shirt by 40%, offered 20% discount and sold it for 234. Find the number of shirts purchased. तो नंबर तो आप नहीं निकाल पाओगे, आप सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, क्योंकि आप रेट के डिस्काउंट से नंबर ऑफ शर्ट्स तो निकाल सकते। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर ऑफ शर्ट्स निकलेगा नहीं, प्रोबेबली फाइंड द कॉस्ट ऑफ शर्ट्स पूछा हो तो आप निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस को मार्कअप किया 40% से, ऐसे करते 40% मार्कअप, फिर 20% डिस्काउंट, ऐसे करते हैं। अब बेच दिया 234 का, कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा। आई होप वैल्यूज में मिस्टेक ना करी हो इन्होंने। 7 5 7 इंटू 32 कैंसल 8, 8 इंटू 25, 8 इंटू 25 200 का कॉस्ट प्राइस है। नंबर ऑफ शर्ट्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। No answers. Three bells ring once every 12 minutes, 20 minutes, 36 minutes. If all of them start ringing together at 6:30 a.m., at what time will they ring together for the next time on the same day morning? कोई भी चीज साइमल्टेनियस होती है, टुगेदर होती है, तो वी ऑलवेज फाइंड देयर LCM, लोवेस्ट मल्टीपल।
तो 12 और 36 तो आपस में पहले ही मल्टीपल है, ये मैटर नहीं करता। तो आपको 20 और 36 का एलसीएम चाहिए। एलसीएम निकालने का फास्टेस्ट तरीका है टेक अ रेशो 5/9 क्रॉस मल्टीप्लाई 180। तो 180 मिनट में साथ में रिंग करेंगे। 180 मिनट मीन्स 3 आवर्स। तो 6:30 के बाद 3 घंटे में रिंग करेंगे 9:30 पे। तो आप केवल एलसीएम लेने का मेथड सीख लो, ध्यान दे दो। 12 और 36 आपस में मल्टीपल्स हैं, 12 डज नॉट मैटर। आपको 20 और 30 का एलसीएम चाहिए। टेक अ रेशो और रेशो को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 180 ही एलसीएम आएगा। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप 5 को मल्टीप्लाई करो चाहे 9 को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एलसीएम निकालने के लिए। When things happen simultaneously, we find out the LCM. Try. आप अगर लॉजिक लगा रहे हो ना बेटा, आपको ना आई थिंक सो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लॉजिक लगा रहे हो तो। राम और श्याम ने कुछ पैसे लिए और दोनों ने अपने अपने पैसे मोहन को 2% एक्स्ट्रा पे दे दिए, 2% एक्स्ट्रा पे। और 4 साल के एंड में जब राम ने अपना पैसा बैंक को वापस कर दिया और श्याम ने अपना पैसा बैंक को वापस कर दिया, तो राम के पास 400 रुपए ज्यादा थे श्याम से। अब क्वेश्चन ये है कि राम ने कितने पैसे लिए होंगे ज्यादा श्याम से। आप इंडिविजुअल पैसा निकाल नहीं सकते। आप देखो, अगर इसका रुपीज एक्स और इसका रुपीज वाई है तो हमेशा x माइनस वाई का डिफरेंस मेंटेन रहेगा। आप 2% एक्स्ट्रा लो, 3% एक्स्ट्रा लो। तो आप पेन को रोको। 400 रुपए आपने कमाए 4 साल में, तो 1 साल में आपने 100 रुपए कमाए। 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। ये 100 रुपए एक्स्ट्रा इन दोनों के बीच का गैप है जो कि 2% के बराबर है, क्योंकि राम भी 2% ज्यादा कमाएगा और श्याम भी 2% ज्यादा कमाएगा। तो 2% इज इक्वल टू 100 रुपए। तो 100% बनाने के लिए 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों के बीच में 5,000 रुपए का गैप है। सर आपने 2% ही क्यों इक्वेट किया? इसने जितना भी लोन लिया होगा बैंक से, सपोज करो ये एक्स्ट्रा पैसा लेता ही नहीं मोहन से, तो इसका कुछ बचेगा ही नहीं। इसके पास पैसा क्यों बच रहा है? क्योंकि मोहन से 2% एक्स्ट्रा ये भी ले रहा है और मोहन से 2% एक्स्ट्रा ये भी ले रहा है। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो 2% ऑफ x माइनस वाई आ जाएगा। ये 400 रुपए के बराबर है 4 साल में डिफरेंस। तो 1 साल में 100 रुपए के बराबर है। तो 2% अगर 100 के बराबर है, इनके बीच का गैप चाहिए ना आपको, तो इनके बीच का गैप हो जाएगा इसका 50 टाइम्स और इसका 50 टाइम्स। इनके बीच 5,000 रुपए का गैप है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वर्बली बनने वाले क्वेश्चन हैं ये। SICI देख के पैनिक मत किए करो, थिंक अबाउट परसेंटेजेस। मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन बना के दिखाया था आपको SICI का। Maybe in the last lecture I have solved for you one question SICI similar approach, परसेंटेज टू परसेंटेज बना दो। उसमें तो 3 अलग अलग परसेंटेज लगाने थे।
10%, 12% एंड 25%। चलो ट्राई। जितना ज्यादा लॉजिकल सोचोगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। देखो, 1,60,000 was divided equal in two parts. One was invested on 12% compound interest annually for 2 years, and other part was invested on simple interest 13% for 2 years. What is the difference between both? पेन को रोको। सिंपल इंटरेस्ट में 26% कमा रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे कमाएंगे? 12 प्लस 12 प्लस 144/100, 24 प्लस 1.44, 25.44। ये कमाई कंपाउंडिंग में है, ये कमाई सिंपल इंटरेस्ट में है। दोनों में कितना गैप है? दोनों में गैप है 0.56% का। तो 0.56% क्या चीज का? इसके आधे का, 80,000 का 0.56% इज द गैप। तो ये दो जीरो कट गए, ये दो जीरो से डेसिमल हट जाएगा, तो योर आंसर इज 56 इंटू 8। 8 इंटू 50 400, 8 इंटू 6 48। तो 448 का गैप है। ये क्या लॉजिक लगाया आपने? कंपाउंडिंग इज बेसिकली सक्सेसिव। मैंने भी कहा ना, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग के फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले ना यूज करो। थिंक मोर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आपका लग जाएगा 12%, 12%, 12 इंटू 12/100। तो आपका अर्निंग 25.4% है। क्यों? आप दोनों को बराबर हिस्से में बांट रहे हो, तो 80,000 पे ये कैलकुलेट होगा, 80,000 पे ये कैलकुलेट होगा और बाद में माइनस होंगे। तो आप पहले माइनस कर लो इस अर्निंग को और इस अर्निंग को। तो 0.56% इंटू 80,000। बेटा 3-3 स्टेप में आंसर आते हैं, मेथड देखना है। ट्राई दिस।
Mohit was 24 years old when Akshit was born. Mohit is now 3 times as old as Akshit. How many years ago was he 4 times as old as Akshit? तो दो पार्ट्स हैं इसमें. मोहित 24 साल का था, अक्षित का एज 0 था. अगर इमेजिन करूं कुछ साल बीते हैं x नंबर ऑफ इयर्स, तो दोनों x से बढ़ जाएंगे. अब जो एज है मोहित की, इट इज 3 टाइम्स ऑफ अक्षित. इसको इधर भेज दो. मतलब कि अभी फिलहाल मोहित का एज 36 है और अक्षित का एज 12 है. क्वेश्चन ये है कितने साल पहले मोहित का एज 4 गुना था. तो आप चाहो तो इक्वेशन सॉल्व करो, चाहो तो ऑप्शन पुट करो. देखो 12 तो ऑप्शन आपका हो भी नहीं सकता. अगर 8 होता तो ये बन जाता 4 इंटू 4 16. यहाँ 8 पुट करोगे तो 24 आएगा. 8 के नॉट बी देयर. अगर 6 होता तो ये बन जाता 6 इंटू 4 24. यहाँ बन जाता 30. नहीं हो सकता. द ओनली ऑप्शन पॉसिबल इज 4. तो ये होता 8 इंटू 4 32. 36 माइनस 4 32. दैट इज योर आंसर. नहीं बेटा, सवाल क्या है? आज के डेट में, आज के दिन पे, टुडे द एज ऑफ मोहित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अक्षित. तो अभी अक्षित 12 साल का है, तो मोहित 36 ईयर्स का है. कितने साल पहले उम्र 4 गुना थी? हाउ मेनी ईयर्स अगो वाज द एज 4 टाइम्स? उसकी एक नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी. आप इसको सॉल्व कर दो. कौन सी बड़ी बात है? 36 माइनस वाई इज इक्वल टू 48 माइनस 4y. इसको इधर ले आओ 3y. इसको इधर ले आओ 12y इज इक्वल टू 4. 4 साल पहले उनकी उम्र 4 गुना थी. 4 टाइम्स. ट्राई. मैं क्यों स्पीड मेंटेन कर रहा हूं? मैं भी आराम से बढ़ा सकता हूं. आई कैन शेयर जोक्स विथ यू अबाउट लाइफ, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन कैबिनेट अलॉटमेंट इन महाराष्ट्र. वी कैन जोक अबाउट दिस थिंग्स, बट फिर भी आपकी स्पीड कम हो जाएगी. स्नैप में भी किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, बेटा आगे बढ़ जाना, कुछ और बनाना. अगर मैचिंग और अरेंजमेंट मिलता है, एलआर मिलता है और एक ही क्वेश्चन मिलता है, मत सॉल्व करो. इनपुट आउटपुट सीक्वेंसिंग मिलता है, एक क्वेश्चन मिलता है, मत सॉल्व करो. जो चीज टाइम टेकिंग है वहां पर 2 2 3 3 का सेट मिलना चाहिए. सिंगल क्वेश्चन मिल रहा है, टाइम टेकिंग है, क्यों टाइम वेस्ट करोगे? सपोज करो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको स्नैप में आ जाए, आपकी रीडिंग स्पीड ही कम है, तो पढ़ने में आपको 1.25 मिनट लग जाएगा. फिर उसके बाद सॉल्व करोगे, तो पढ़ना ही मत इसमें. देखो मेरी स्पीड रीडिंग भी अच्छी है, सॉल्विंग भी अच्छी है. आई कैन टेक दैट रिस्क. स्नैप एग्जाम है, ये आपको अभी स्क्रीन पे 4 लाइन का दिख रहा है. स्नैप एग्जाम में जो विंडो होगी छोटी होगी, उसमें अलग अलग पैलेट्स होंगे. यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होंगे ऊपर नीचे. तो ये आपको 6 to 8 लाइंस का दिखेगा. छूना भी मत अगर आपकी रीडिंग स्पीड कम है तो. इज द ऑडियो क्लियर? चलो. Jay Kumar invested 1 lakh rupees in stock of pharmaceutical company 3 years ago. The value of his stock rose by 10% in the first year, then rose by 5% in the second year, and then fell by 10% in the third year. What is the value of the stock today? आज उस स्टॉक की वैल्यू क्या है? तो देखो आप लॉजिकली बनाओगे तो ये जो पैसा है 1 लाख रुपीज, ये 10% बढ़ेगा 11/10, 5% बढ़ेगा 105/100 और 10% घटेगा 9/10. तो आपका आंसर 11 का मल्टीपल है और 9 का मल्टीपल है. देखो इनका डिजिट सम 9 है, इनका डिजिट सम 9 है, इनका भी 9 है और डिजिट सम इनका 9 नहीं है. आंसर इज आइदर ए, बी और सी. अभी 11 का मल्टीपल कैसे देखते हैं? इसको अल्टरनेटिवली ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया. अल्टरनेटिवली इट इज 4. और जब मैंने इनको अल्टरनेटिवली ऐड किया, मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. 11 का और 9 का मल्टीपल चाहिए. आप सॉल्व कर दो, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है. आपको 11 का मल्टीपल चाहिए. 11 का मल्टीपल कैसे मिलता है? लास्ट पोजीशन प्लस दिस 3, 3 प्लस दिस इज 0 और ये 6. तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है. 1035000.
इसको ऐड किया 5, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, 5 और ये 4 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ओनली आंसर ऑप्शन इज, चेक कर लो, 103950। अल्टरनेटिवली ऐड करेंगे तो 9 बनता है, अल्टरनेटिवली ऐड करेंगे तो 9 बनता है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11। आपका आंसर है सी। ये क्या कर रहे हो सर? बेटा 10% से बढ़ाना है 11/10, 10% से घटाना है 9/10, दोनों मल्टीप्लाई होगा, 11 और 9 मल्टीप्लाई होगा, तो 11 और 9 का मल्टीपल इज ओनली आंसर ऑप्शन सी। तो हमने तो यहाँ पर परसेंटेज का सवाल नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल से बना दिया। तो क्लास में टीचर ये क्यों नहीं कर सकता? दो हो सकता है, विल की कमी, दूसरा नॉलेज की कमी, दूसरा बैच वैसा है, चिल आउट बैच है, अगले साल देखेंगे सर। नो चिंटू मिंटू धनिया पुदीना वाज हार्म्ड इन क्रिएटिंग these शॉर्टकट्स। ट्राई करो इसको भी। वेरी गुड। क्या सवाल है? 1 hour after Ashish started from his college towards Tanvi's college at a distance of 53 kilometers, Tanvi started from her home on the same road towards Ashish's college. If Ashish's speed is 4 kmph, Tanvi's is 3 kmph, how far from Tanvi's home did the two meet? तो कहां कहां से जा रहे हैं? आशीष स्टार्टेड फ्रॉम हिज कॉलेज टुवर्ड्स तन्वीज, तो 53 किलोमीटर है कॉलेज में और तन्वी के घर में। तो आशीष के शुरू होने के 1 घंटा बाद तन्वी ने शुरू किया, तो जो आशीष है वो 4 किलोमीटर आगे आ जाएंगे, तो दोनों के बीच 49 किलोमीटर बच जाएगा। अब तन्वी इधर जा रही है, आशीष इधर आ रहे हैं, यहां से 49 का गैप है। तो जब दोनों साथ में चलेंगे और बीच में मिलेंगे, तो जितनी स्पीड है उतना दूर जाएंगे। तो तन्वी ट्रेवल करेंगी 3/7 ऑफ 49, कैंसिल कैंसिल, तो तन्वी के घर से 21 किलोमीटर पे मिलेंगे। तो दो दो स्टेप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, देखो वर्बली बन सकता है ये, क्योंकि आशीष 1 घंटा पहले निकले, तो आशीष ने 4 किलोमीटर पहले कवर कर लिए, अब बच के 49 किलोमीटर। अब दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो कितना कितना ट्रैवल करेंगे विल डिपेंड अपॉन उनका स्पीड। ये 3 यूनिट करेंगे, ये 4 करेंगे। व्हेन द टाइम इज सेम, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगले पे चलते हैं।
right circular cone, right circular cylinder have a circle of same radius as base and their heights are equal to radius itself. If a hemisphere has same radius, then their volumes are in what proportion? तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का जिस ऑर्डर में दिया उसी में जाना है. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर? 4/3 होता है पूरे का वॉल्यूम, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर. अब आपने एक और क्या बात बोल दी कि हाइट और रेडियस दोनों बराबर है. हाइट और रेडियस दोनों बराबर है, तो देखो हाइट और रेडियस बराबर है, आर स्क्वायर एच कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 1/3 रेशो 1 रेशो 2/3, 3 मल्टीप्लाई कर दो 132. ये मैंने कंप्लीट सॉल्व किया. अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो सिलेंडर है और जो कोन है, अगर दोनों की हाइट और दोनों का बेस सेम है तो इसके वॉल्यूम का 1/3 होता है. यहाँ पे उल्टा, अगर इसका वॉल्यूम 1 है तो इसका 3 होगा. अगर कोन का 1 है तो सिलेंडर का 3 होगा. देखो कोन का 1 और सिलेंडर का 3 एक ही ऑप्शन में है. इसको प्रिज्म बोलते हैं और इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं ऑफ द प्रिज्म. वॉल्यूम 1/3 होता है. अगर बेस सेम है, बेस इज सेम, हाइट इज सेम, वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा. दिस इज द ओनली प्लेस वेयर द वॉल्यूम इज 1/3. ये 1 है तो ये 3 है, ये 1/3 है. ये आपको फिर सॉल्व नहीं करना पड़ता. My watch runs faster at a rate of 15 seconds per hour. If I have set my watch correctly on 10 a.m. Tuesday, what will be the time shown by the watch on 6 p.m. Saturday? थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है, ये सेकंड्स की बात कर रहा है और ये आवर्स की बात कर रहा है. अगर रियल टाइम में 1 घंटा जाएगा तो जो फॉल्टी घड़ी है वो केवल 15 सेकंड गेन करेगी. आपको करना क्या है, 10 AM पे ट्यूसडे पे सेट किया, 10 AM ट्यूसडे. ट्यूसडे से वेडनेसडे जाने में 24 घंटे, वेडनेसडे से थर्सडे में 24 घंटे, फ्राइडे में 24 घंटे, 24 24 24 72 आवर निकल गए आपके. अभी आप कहो 10 AM पे, 10 AM से 6 PM मतलब 8 घंटे और, तो आपने 80 घंटे निकाल दिए. 1 आवर में आपकी घड़ी 15 सेकंड आगे जाती है, तो 80 आवर्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी घड़ी 1200 सेकंड आगे जाएगी. तो 1200 सेकंड होता कितना है? एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड चेक कर लेना. 12 सेकंड होता है 20 मिनट के बराबर. तो आपकी घड़ी 20 मिनट आगे दिखनी चाहिए, तो आंसर शुड बी 6:20. ये भी बात चेक कर लो. मंडे टू ट्यूसडे टू वेडनेसडे 20 घंटे 24 घंटे, वेडनेसडे थर्सडे 24 घंटे, थर्सडे फ्राइडे 24 घंटे. 10 AM हो गया, 10 AM से 12 2 घंटे प्लस 6 8 घंटे, तो आपका 80 आवर्स हो गया. 80 आवर्स में आपकी घड़ी 15 सेकंड आगे बढ़ेगी. 15 × 80 1200. 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं. 6:20 आपका आंसर आना चाहिए. प्रोबेबली एडिटिंग में इशू है. 6:20 PM आपकी घड़ी दिखाएगी. योर वॉच विल शो 6:20 PM. अरे सैटरडे कहाँ है भाई, सैटरडे का हम कहाँ पर रुक गए, हम फ्राइडे पे रुक गए. अगर आप सैटरडे पे जाओगे तो 24 घंटे और जुड़ेंगे, तो 104 घंटे लगे आपको, 104 घंटे. तो
15 इंटू 104/60, ये कैंसिल, एक बार 4 बार ये कैंसिल, 26। तो 6:26 होंगे अभी घड़ी में। सैटरडे जाना है, हम फ्राइडे पे जाके रुक गए ना, हमें सैटरडे तक जाना है। Let us try a few more questions, then we'll call it a day. Try. There are 6 balls of different colors, 3 boxes of different sizes. Each box can hold 6 balls. If balls are put in the boxes so that no box remains empty, the number of ways in which this can be done is. This is called distribution theorem, also group formation. आप 3 ग्रुप बनाने वाले हो जिसका टोटल एडिशन 6 होगा, नॉन जीरो। तो इट कुड बी 4-1-1, इट कुड बी 2-2-2, इट कुड बी 3-2-1, और कोई तरीका नहीं है। अब 4-1 का ग्रुप कैसे बनेगा? 6/4, 1 into 1 into 1/2 फैक्टोरियल। अब यहाँ चक्कर आएंगे, यहाँ बहुत लोगों को चक्कर आएंगे। ये क्या कर रहे हो सर? और बाहर से मल्टीप्लाई होगा 3 फैक्टोरियल। ये कॉन्सेप्ट है बेटा ग्रुप फॉर्मेशन का, व्हेन द साइज डिस्टिंक्ट, पीपल आर डिस्टिंक्ट। थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है पीएनसी का। एनमैट में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, स्नैप में आ गया तो आई डोंट थिंक आपसे बनेगा ये। एक चीज पक्की है, अब बाहर में क्या लगा रहे हो? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6। मेरा आंसर 6 का मल्टीपल होना चाहिए, मेरा आंसर होना चाहिए 6 का मल्टीपल। देखो, इज इट अ मल्टीपल ऑफ 6? ये 2, ये 6 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता, ये 9 बनता है, ये 6 का मल्टीपल हो सकता है। 7 + 8 15, ये 6 का मल्टीपल हो सकता है। तो मल्टीपल से हेल्प नहीं मिली, सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज 720, ये होता है 24, 720/24 30, 30/2 15। ये होता है 720, 720/8 which is 90, 90 divided by 6 it is 15। तो 15 तरीके हैं ये और ये करने के। ये होता है 720/6 into 2 12, तो ये होता है 60, और बाहर से 6 और लगेगा, तो 540 is the answer। 90 into 6। 6 का मल्टीपल चाहिए, सारे ऑप्शन 6 के मल्टीपल्स हैं, इफ यू नोटिस हियर। अगर एक ही होता तो मैं आंसर लगा देता आपके लिए। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन अंडर कंडीशन, ये कॉन्सेप्ट होता है ग्रुप फॉर्मेशन का। आप 6 में से 4 एक एक का ग्रुप बना रहे हो, क्योंकि मैंने इनको नाम नहीं चिपकाया, अभी एबीसी नाम नहीं चिपकाया, तो बाहर से 3 फैक्टोरियल आएगा। क्योंकि तीनों की साइज बराबर है तो नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा। जब साइज बराबर होती है तो आइडेंटिटी रिमूव करनी पड़ती है। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो गया अकॉर्डिंग टू स्नैप, बट ये एनमैट में एक्सपेक्ट कर सकते हो।
सिंपल इनफ। आप ये कह रहे हो 26 सवाल है, आपको 5 नंबर कटेगा अगर आप गलती करोगे, 8 नंबर मिलेगा अगर आप सही करोगे, और 0 स्कोर है, मतलब जितना आपने सही करे कमाया उतना आपने गलत करके गंवा दिया, दोनों बराबर है। अब आपका सवाल है हाउ मेनी वर करेक्ट, हाउ मेनी वर करेक्ट। तो जो करेक्ट होगा वो हमेशा 5 का मल्टीपल होगा। देयर इज ओनली वन मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि स्कोर 0 है ना, जितना आपने नंबर कमाया पॉजिटिव से उतना आप नेगेटिव भी कर दिया, तो पॉजिटिव स्कोर इज इक्वल टू नेगेटिव स्कोर। तो आपको सी का वैल्यू चाहिए ना, सी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा, और डब्ल्यू क्या होगा, 8 का मल्टीपल होगा। तो करेक्ट का वैल्यू 10 होगा। आप देख लो, 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 16। 10 सही है, 16 गलत है। सारे सवाल बनाने हैं आपको। ये ऐसा लिखा हुआ है, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत छोटे वैल्यूज हैं, इन दोनों में कितना फर्क है पावर में, पावर में 2 का फर्क है। आप केवल 2 के पावर लिख लो, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। अब आपको 2 के गैप में टोटल 320 चाहिए, 320 320 चाहिए 2 के गैप में। देखो, आई होप प्लस माइनस मिस्टेक ना की हो, यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे 300 तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि पावर x माइनस 1 और x प्लस 1 है, दोनों में 2 का गैप है, तो 2 के गैप में एडिशन शुड बी 320। नन ऑफ दीज वैल्यूज विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट। 320 नहीं आएगा बेटा, 2 का गैप होना चाहिए पावर्स में। ये अगर पावर 2 की पावर x प्लस 1 है तो ये 2 की पावर x माइनस 1 होगी। ये जा रहा है हमारे पास 288 तक जा रहा है, 288 तक जा रहा है, उसके आगे नहीं जा पाएगा। मे बी टाइपिंग इशू होगा, मेमोरी जो याद करके है उसका वो इशू होगा, मे बी दिस नंबर इज डिफरेंट, क्योंकि इससे आगे 2 का गैप लोगे तो 500 क्रॉस कर जाएगा, विच इज नॉट फीजिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। 2 की पावर x minus 1 plus 2 की पावर x plus 1 is equal to 320. Not possible. It's not possible to achieve that total. कौन से वाले क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन बोल रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, ये सवाल में कुछ मिस्टेक है फ्रेमिंग में, हमें x का वैल्यू निकालना है। अगर मुझे पता पड़ जाता कि ये और ये मिलके मेरा टोटल वैल्यू आ रहा है 320 आ रहा है, तो ये बन जाता 2 का पावर 5 विच इज x minus 1, x इज इक्वल टू 6 मिल जाता मेरे को। ऐसा ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं स्नैप के, तो जिन्होंने भी क्वेश्चन कॉपी किया या मेमोरी बेस्ड लेकर आए बाहर, उन्होंने मिस्टेक करी क्वेश्चन फ्रेम करने में, तो ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। अगर ये 288 होता तो आपको पता पड़ गया इससे और इससे बनता है, तो ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है, x इज इक्वल टू आपको 6 मिल जाएगा। x निकालना है, वी नीड वैल्यू ऑफ x। ये लो, we need to multiply these two numbers. आप डिजिट सम मेथड लगा सकते हो, अगर आपको चाहिए डिजिट सम मेथड ट्राई करना है आप कर लो, अदरवाइज मैं आपको एक मेथड समझाता हूँ। कभी 25 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर के पीछे 2 जीरो लगा के 4 से डिवाइड कर लो। 125 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर के आखिरी में 3 जीरो लगा के डिवाइड बाई 8 कर लो। तो जो पूरा नंबर है 5 7 4 6 3 2,
इसके पीछे 3 जीरो लगा के 8 से डिवाइड कर दोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो 8 से डिवाइड करने पे आप ध्यान दो, 8 इंटू 7 56, थोड़ा ध्यान दो, 14 1 टाइम्स। तो 7 1 वाली कौन सी वैल्यू है? केवल ये आपका आंसर है। जो वैल्यू 7 1 वाली, दैट इज योर आंसर। आप डिजिट सम से भी कर सकते हो, बट मेरे को क्या दिख रहा है, ऐसा 12 डिजिट आपसे कौन ऐड करवाएगा? 12 डिजिट ऐड करके फिर आंसर चेक करोगे, इसको भी ऐड करोगे, चेक करोगे। 125 से मल्टीप्लाई करना मीन्स 1000 लगा के 8, 125 क्या होता है? व्हाट इज 125? 125 इज 1000 अपॉन 8। तो पीछे 3 जीरो लग जाएगा, डिवाइड बाई 8 कर लो। आपको केवल आगे के 2-3 डिजिट चेक करने हैं ना, केवल 2-3 डिजिट चेक करने हैं। तो 2 स्टेप में आंसर आ गया आपका। ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। कल के लिए गुड लक। आई थिंक कल आप लोगों का एग्जाम होगा।